So, hello guys, welcome back to the very next session, test session. Actually, the today's topic is mixtures, and most of you guys have been attended today's lecture. And people, you can please respond in the group chat that were you able to understand today's lecture on mixtures. So, this will help me accordingly to explain the way which I should approach for explaining the test after you are done with solving those by yourself. Okay, so today's test session will be going as same as the others earlier would have been. So today I'll be showing 5 questions to you, and first of all you all have to try those by your own, and after that I'll be giving a sufficient time to you all, and after that I'll be moving towards the explanation part, and I'll be explaining all the 5 questions. It is a simple basic test of containing of only 5 questions. I myself have created the test, and I have personally made this test adding a variety of different questions, but all those will be dependent on the mixtures only. So please don't worry कि अगर previous, if you have any missed any previous lecture, so there is not much relatable on it. Okay, so there is not much relatable. जिसको नहीं समझ रहा है, I'll be solving all those doubts at the end of the session. Okay, so feel free to ask any doubts at the end, and I'll be starting the session now. And okay, so I'm sharing my screen. Start solving those questions by yourself. If you are not able to solve the question, the only thing you can do as of now is understand the question. Just do one thing ki understand the question. Okay, so we should start. Okay, uh, okay, just a minute. Okay, so I'm going to start this session and start with the first question, which you will be seeing. Just a minute, there is a network issue from my side. Okay, so people, you can start with the first question. Try solving it, try to understand it, and do not hesitate to ask any doubts. Okay, start solving the first question. And those who are done with the questions, write the answers on a page, and I've also always asked you to keep a pen and a paper with you. And once you are done with the answers, do not post on the group chat. Just write those answers on a page, and at the end, please tally your answers or solution with the given answers, so you'll get to know how much you have scored out of 5 questions and how much you have got the correct.
Okay, so I think first question should be done by this time. Okay, so those who are still doing the first question, I'm doing the first as well. Yes, for the solution, I'll be sharing the link on the WhatsApp group. So please don't worry. I'll be sharing the test link, and over there you can find the solution as well as the questions. Okay, so don't worry. Ashish Mishra, Prithvi, Nayan. So you guys are done with this question. So great. So is there anyone who is still doing the first or second question? Please respond, or you can personally, privately respond in the group chat to me as well. This recording will be uploaded on YouTube, not on the in the login ID. So don't worry. Okay, Piyush, try. I think first most of the people are done with the first question, and those who are new, I am not expecting at least I'm not expecting even a one question from you. So if you are not able to do even one questions among these five questions, so don't worry. In the first go, no one even I was not able to do this type of questions in my first go, in my first lecture also. Okay, so don't worry, it was the same level for me also at the start of my preparation. So those who are not able to understand these questions, or those who are not able to solve these questions, so please don't worry. At the end, try to understand the explanation part, and after that also you are not able to understand. So there will be more lectures on mixtures after some period of time, or you have the recorded lectures of mixtures as well. So whichever topic you are not able to understand, please refer to the videos on your in your login id. Okay, and after that still you are not able to understand, please uh, ping personally to any faculties over here. So you guys can ping me on WhatsApp personally. So I'll be more than happy to help you regarding any doubt related to your preparation. Parth, wait just a minute, people are still doing. So I think this is sufficient time for the first three questions. Okay, so those who are not able to do all the five questions, so try to maximize the number of questions you are able to do. So if you are able to do three questions, cool. Just stick to the point and try to understand the question first before starting to solve it, because understanding is the main thing. कैट में क्वेश्चंस वैसे नहीं आने वाले जिसको तुम फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे. द मेन थिंग इन कैट इज क्वेश्चंस वैसे ही देंगे कौन में जिस जो समझ लो. अरिथमेटिक ये सब के क्वेश्चंस भले ही टफ आएंगे, पर वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे, और यू विल बी एबल टू डू at most 17-18 questions with logic, pure logic. Okay, so uh, just try to understand the concept of each chapter in the first. So no one is asking to ratify the formulas in the first go. Okay, so we are not expecting anything from you as of now. Just you need to do is attend the lectures, ask doubts if any, which is the main thing. Doubts पूछने ही पड़ेंगे तब जाके सॉल्व होगा, नहीं तो मतलब नहीं है. ओके, कुशल यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग का लिंक व्हाट्सएप पे दे दिया गया. ओके,
I'll be sharing the YouTube link as well. Or I think Rav sir will be sharing. Okay, one of us will share, don't worry. Or you can find on the YouTube as well, now. By tomorrow morning, it will be uploaded for sure. And then too, if you are not able to find it, please feel free to ping me on WhatsApp. Okay, so I think time should be done. People who are still doing, please respond on group chat, or I will start the explanation part. People who are still trying and finding it easy or doable, so I'll be giving some more time. So if you are still doing, so please respond in the group chat, or else I think I should start the explanation part. So wait, Umesh. Okay, 2 minutes more. It's 9:26. 3 minutes. 9:28. 9:29 will be the time when I'll be starting the explanation. हाँ तो चलेगा ना, 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए तो अच्छी बात है ना, 2 तो हुए एटलीस्ट. मे बी यू आर न्यू टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सब सॉल्व हो. जब पहली बार क्वेश्चन देखोगे तो जरूरी थोड़ी सारे क्वेश्चन आ जाए. दोज हु आर एबल टू डू कि उनने उनने फिर थोड़े कंसेप्ट समझा होगा, इसीलिए परसेंटेज ये सब के कॉन्सेप्ट समझा होगा. दोज हु आर न्यू, सो डोंट वरी. फोर्थ क्वेश्चन नॉट गेटिंग. ओके चलो एक्सप्लेनेशन में समझ लेना. नयन, 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए तो अच्छी बात है. जिसका एक भी नहीं हुआ है तो भी अच्छी बात है. हाँ, तो भी एक्सप्लेनेशन में समझो बस. जिसके एक क्वेश्चन हुआ है, सो नॉट अ बिग डील, चलेगा. चलो यार, बहुत टाइम हो गया आज. इतना टाइम नहीं देना चाहिए. जिसके 2 क्वेश्चन ही हुए, वो सब क्वेश्चन को एक बार रीड करे, अच्छे से समझे बस. सौरव स्टार्ट सर. ओके सौरव. सौरव गांगुली. चलो आई थिंक वी शुड स्टार्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. A mixture of 150 liters of wine and water contains 20% of water. How much more water should be added so that water becomes 25%? This is the main, I can say, the common question in mixture questions, mixture chapters. Okay, so mixture ke chapter mein, this is one of the common question which you will be getting in the exams like CMAT or a level up in CET. Okay, so first question is, a mixture of 150 liters of wine contains 20% of water. How much more water should be added so that the water becomes 25% of the new mixture? Question समझो. 150 लीटर्स का वाइन है, उसके अंदर वाइन का मिक्सचर है, उस 150 लीटर्स का. ओके, उसके अंदर 20% वाटर है. तो 150 लीटर्स के अंदर 20% वाटर है, मतलब 10% इज 15, और देन 10% दूंगा तो 30 हो जाएगा. तो मतलब 150 के अंदर 30 लीटर्स तो वाटर है, मतलब विच इज 20% ऑफ 150. ओके, हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम्स 25% ऑफ द न्यू मिक्सचर. ओके, सो 150 है, 150 में 30 क्या है, वाटर. अब 120 क्या है, 120 बचा क्या है, 120 है वाइन, प्योर वाइन. तो 120 अगर प्योर वाइन है, सपोज 120 अगर प्योर वाइन है, सो बचा 30 क्या है, वाटर हो जाएगा. अब कितना मैं वाटर और ऐड करूं, जो पहले वाटर 20% था, अब वाटर मैंने कुछ और मैंने ऐड कर दिया तो 25% हो जाएगा. सो ऐसे होता है. 150 में 120 लिखा मैंने. 120 इज वाइन विच इज 80% ऑफ द मिक्सचर. सो 120 80% था, और बाकी का 30 लीटर्स ऑफ वाटर विच इज 30 लीटर्स ऑफ वाटर विच इज 20% ऑफ द टोटल मिक्सचर. अभी वाइन तो उतना का उतना ही रह रहा है, सो 120 वाइन तो है ही अभी तक. ओके, अब 120
तो वाइन है, पर 120 अभी के लिए क्या हो गया पता है, अगर वाटर को मुझे 25% करना है तो 120 जो वाइन है, वाइन तो उतना का उतना ही रहेगा, जस्ट व्हाट वी आर डूइंग इज एडिंग सम वाटर। सो 120 तो 120 ही लीटर्स का रहेगा वाइन। बट पहले अपना था वाइन का परसेंटेज 80% वाइन था एक मिक्सचर में, अभी क्या है 25% वाटर है, तो मतलब 120 लीटर्स विल बिकम 75%। ओके, तो 75% ये हो गया। सो 20% कितना होगा? सो एक्स 25% कितना होगा? जैसे कि ये है, तो 120 लीटर्स तो वाइन था, तो उसके सामने अभी क्या हो गया, 120 लीटर्स अभी भी वाइन 120 लीटर्स ही है, बट परसेंटेज अभी उसका 75% हो जाता है, बिकॉज द थिंग इज द थिंग इज 25% वाटर बन जाता है। 25% अगर वाटर है, सो 25% के सामने कितना आना चाहिए क्वांटिटी? सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 लीटर 75% होता है, तो एक्स लीटर्स कितना होगा 25%। सो इसका आंसर स्ट्रेट अवे दिखता है 40। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर एक्स का आएगा 40। सो 40 लीटर्स है। द मेन थिंग इज 150 लीटर्स में 120 लीटर्स वाइन था, अभी 30 लीटर्स वाटर था, तो पहले 30 लीटर्स वाटर था, अभी एक्स का वैल्यू कितना आया 40। सो पहले 30 था, अभी 40, तो एडिशनल कितना आया 10 लीटर्स। सो आंसर विल बी 10 लीटर्स, मतलब मैंने 10 लीटर्स वाइन वाटर और डाल दिया, उसके वजह से मेरा वाटर का टोटल रेशियो मतलब परसेंटेज 100 में से 25% हो गया, विच वॉज अर्लियर 20%। those who were not able to get this solution, please find to get this traditional method which is explained in the solution. The method which I explained is another method. ये एक मेथड भी है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी गेटिंग you will understand this type of solution as well. Okay, so this is the traditional method. Okay, so I think we should proceed to the next question. ओके, सो अगेन रिपीट करता हूँ। 150 लीटर्स का वाइन है, उसके अंदर 20% वाटर है, विच इज 30 लीटर्स हो जाता है। ओके, सो 150 के अंदर 30 लीटर्स क्या हो गया वाइन, वाटर। सो बचा कितना 120 लीटर्स, कितना क्या हो गया वाइन। सो 120 वाइन हो गया। नाउ अभी जैसे उसने नया मिक्सर बोला है, उसमें नया मिक्सर में 25% वाटर होना चाहिए, बाकी 75% बचेगा वो वाइन होगा। अब वाइन तो अपने ने एडलेस कुछ किया नहीं, मतलब 120 वाइन जो पहले था अभी भी 120 रहेगा, तो 120 वाइन परसेंटेज जो पहले 80% था अभी 75% हो जाएगा। ओके, अभी अब 120 वाइन ये हो गया। सो ओके, जस्ट अ मिनट। अभी बचा 25%, 25% तो वाटर होगा। ओके, सो पहले 120 वाइन था विच इज 75% ऑफ द न्यू मिक्सचर, अब 75% 120 है, सो 25% कितना होगा? अब जो जितना होगा वो अभी वाटर का क्वांटिटी हो जाएगा, वाटर का क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना 120 इंटू 25 और 75 इंटू एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से एक्स का वैल्यू मिलेगा 40। एक्स का वैल्यू 40 मिला, तो पहले का एक्स का पहले एक्स इज वाटर नाउ। ओके, सो अभी 40 लीटर्स वाटर है न्यू मिक्सचर में। अब पहले वाटर था 30 लीटर्स, अभी 40 लीटर्स है, तो 10 लीटर मैंने और ऐड किया। ओके, सो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। समझा सबको? पृथ्वी गॉट इट पार्थ, समझा क्या सबको? जिसको नहीं समझा तो अभी ये लेक्चर फिर भी रिकॉर्ड होने वाला है, सो वापस एक बार देख लेना तो और अच्छे से समझ जाएगा, थोड़ा शांति से देख लेना। Question 2. In what ratio should two varieties of sugar of 18 per kg and 24 per kg be mixed together to get a mixture whose cost is 20 per kg? अब उसने क्या बोला, ये एकदम कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है मिक्सचर में, अभी आज के लेक्चर में सॉल्व भी किया होगा। सो 18 रुपीज का एक मिक्सचर है, 18 रुपीज का पर केजी का एक शुगर टाइप है, दूसरा 24 रुपए किलो का है दूसरा शुगर। अब दोनों अलग अलग टाइप के शुगर को मैं किस रेशियो में मिक्स करूं ताकि मुझे 20 रुपए का एक एवरेज मिल जाए उसका। सो इसका एलिगेशन का एक मेथड है। फर्स्ट
वेराइटी लिख दिया मैंने यहाँ पे 18, सेकंड वेराइटी इधर लिख दिया, और मेरे को क्या आउटकम चाहिए, 20 रुपीज का चाहिए मुझे। सो मैंने 18 का मेरे पास एक टाइप है, दूसरा 24 का टाइप है, बीच में मैंने 20 का लिख दिया जो मुझे लास्ट में आउटपुट चाहिए, मतलब मिक्सचर हुज कॉस्ट इज 20 पर केजी। मतलब क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो शुड बी टू वेराइटीज ऑफ शुगर 18 पर केजी एंड 20 पर केजी, ये टू वेराइटीज हो गया, बी मिक्स टुगेदर टू गेट अ मिक्सचर हुज टू गेट अ मिक्सचर। सो मतलब 20 रुपीज का मिक्सचर अपने को चाहिए। सो 18 का पहले था, 24 ये, 20 बीच में। अब डिफरेंस दोनों जगह लिख दो, डिफरेंस जो आएगा वही रेशियो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4 और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2, तो ये 4:2, सो उसको कट शट करके 2:1 रेशियो आता है। सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड फॉर एलिगेशन। आगे जाके एलिगेशन आप परसेंटेज ये सब चैप्टर्स में भी यूज कर पाओगे एट टाइम्स। सो यही ट्रेडिशनल मेथड एलिगेशन का, बस यही है, दो वेराइटी लिखा, बीच में दो रेट लिख दिया, बेसिकली ये फर्स्ट रेट सेकंड रेट, और बीच में रिक्वायर्ड रेट, और जो डिफरेंस आएगा वो रेशियो बन जाता है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, two varieties of wheat A and B costing 9 per kg and 15 per kg was mixed in the ratio 3:7. If 5 kg of the mixture is sold at 25%, find the profit made. अभी ये थोड़ा अच्छा ट्रिकी वाला पार्ट है, एक मिनट, इसमें ये कैसे आ गया, हाँ इसका सोल्यूशन फोटो वाला नहीं है। ओके, हाँ तो थोड़ा फास्ट करते हैं, टाइम आज कम है। हाँ, टू वेराइटीज ऑफ ए एंड बी कॉस्टिंग 9 पर केजी एंड 15 पर केजी, दो है 9 पर केजी और 15 पर केजी का, दो आइटम है। उसको मैंने 3:7 के रेशियो में मैंने खरीदा है, उसको मिक्स किया है। ओके, अब उसका मिक्सर जो बनता है उसका कॉस्ट कितना होता है ऐसा। अभी ये समझो, ए और बी के दो टाइप है, 9 पर केजी 15 पर केजी। अब मैं इसको अज्यूम क्या कर रहा हूँ पता है, 3:7 के रेशियो में मिक्स किया, सो मैं इसको अज्यूम करता हूँ 3 केजी और 7 केजी है, 3 केजी और 7 केजी अज्यूम करता हूँ, तो मैं टोटल कॉस्ट निकालूंगा, अज्यूम एज 3 केजी ऑफ फर्स्ट क्वालिटी एंड 7 केजी ऑफ सेकंड क्वालिटी। नाउ टोटल कॉस्ट विल बी 3 into 9, बिकॉज 3 केजी अपने ने अज्यूम किया वो है फर्स्ट क्वालिटी, तो 9 रुपीज का था, 3 केजी into 9, और सेकंड क्वालिटी था 7 केजी इंटू 15 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट आएगा 3 into 9 प्लस 7 into 15 विच इज 132। अब 132 कितना है, 10 किलो का है, 10 केजी का है, क्योंकि अपने ने यहाँ पे 3 माना, 3 केजी और 7 केजी, तो टोटल 10 केजी का हो गया। अपने को कितना चाहिए, 5 केजी का चाहिए। सो 132 अगर 10 केजी का है तो 5 केजी का क्या होगा, ऑब्वियसली आधा हो जाएगा। सो 5 केजी का कॉस्ट विल बी 66। अब टोटल कॉस्ट मेरा मिला है मुझे 66। अब उसमें क्या बोला है, प्रॉफिट, if 5 kg of the mixture is sold at 25% profit, find the profit made। मतलब 5 kg का कॉस्ट अपने ने निकाला, अब इस सोल्ड इज 25% प्रॉफिट, अब वो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 25%, तो इसका अपने कॉस्ट का 25% निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, इसीलिए समझे। तो इसमें यही ट्रिकी था कि फर्स्ट पहले टोटल कॉस्ट निकालो, अभी 10 केजी इसमें अज्यूम किया है तो उसका हाफ कर दो, हाफ किया तो 66 बनता है मेरा कॉस्ट, उसमें 25% प्रॉफिट और 25% 66 का निकाल दो, सो आंसर विल बी 16.5। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, 66 इसीलिए आया बिकॉज टोटल कॉस्ट मेरा 10 केजी का 132 आया, सो 5 केजी का निकालना है तो उसका हाफ हो जाएगा वैभव। ओके, सो 132 10 केजी का था, अभी 5 केजी का निकाला तो हाफ हो गया। Fourth question. In a mixture of milk and water, the proportion of milk by weight is 80%. If in a 180 gram mixture, 36 gram of pure milk is added, what would be the percentage of milk in the form? In a mixture of milk and water, the proportion of milk by weight is 80%. मतलब एक मिक्सचर है उसमें 80% तो मिल्क है और 20% वाटर है। अब इन 180 ग्राम ऑफ मिक्सचर 36 ग्राम ऑफ मिल्क इज एडेड। अब 180 ग्राम का मिक्सचर है, उसके अंदर, अभी इसको थोड़ा इजी लाइटली लेते हैं, एक मिक्सचर है उसमें 80% मिल्क है और 20% वाटर है। अब 180 ग्राम का एक मिक्सचर बन गया, उसके अंदर वापस सेम होगा, 80% क्या होगा, मिल्क हो जाएगा। सो 80% मिल्क है, 20% वाटर है, सो इसमें 20% वाटर कितना होता है, 18 18 36, मतलब 180 में 36 वाटर है और 144 इज प्योर मिल्क। मतलब अभी 180 को दो मैंने पार्ट डिवाइड कर दिया, 144 प्योर मिल्क और बचा 36 इज वाटर। अभी क्या बोला, 36 ग्राम ऑफ प्योर मिल्क इज एडेड। अभी 36 ग्राम प्योर मिल्क मैंने और ऐड किया, 144 था पहले मिल्क, अभी 36 और ऐड हो गया, तो 144 प्लस 36 विच विल बी 180, राइट। सो 180 आ जाएगा, प्योर मिल्क अभी हो जाएगा, प्लस 36 पहले से अपना क्या है, वाटर तो है ही अभी तक, तो 36 वाटर, तो 180 तो
180 अभी प्योर मिल्क हो गया जब 36 मैंने और ऐड कर दिया। सो 144 पहले था मिल्क, अभी 36 और ऐड करने के बाद 180 हो गया। 180 था और पहले से जो इधर 20% 180 का जो वाटर बचा हुआ था वो अभी साथ में रह गए, तो वो नए मिक्सर में और ऐड हो जाएगा। सो 144 प्लस 36 प्योर मिल्क, 180 इज प्योर मिल्क। 180 माइनस 180 प्लस 36 विच विल बी 116, राइट? तो 116 का 80 180 कितना परसेंट होता है, विच विल बी 83.33%, 216, यस। सो देखो 180 अपॉन 216, 216 इज द टोटल मिक्सचर आफ्टर एडिंग मिल्क। ओके, लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। 83.33% आया उसका, समझे ना? मतलब टोटल मिल्क कितना है डिवाइडेड बाय टोटल। ओके पृथ्वी एक्सप्लेनिंग इन लास्ट टाइम। टोटल अपने 180 ग्राम का मिक्सचर है, 180 ग्राम के मिक्सचर में 80% क्या है, मिल्क। तो 180 का 80% हो जाता है 144। 144 प्योर मिल्क है, अभी 36 ग्राम मिल्क और ऐड किया है। सो 144 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 180 ग्राम ऑफ प्योर मिल्क। 180 ग्राम्स ऑफ प्योर मिल्क प्लस 36 पहले से जो वाटर बचा था ना 20% इसका 180 का। सो 36 वो और 180 अपने को प्योर मिल्क अभी 36 ऐड करने के बाद मिला। सो 180 प्लस 36 विच इज 216। तो 216 ग्राम्स का अभी अपना टोटल मिक्सचर हो गया। अब उस 216 में 180 will be our pure milk. So 180 is what percent of 216? 216 is the total quantity of the mixture and 180 is the total quantity of milk. Okay, fifth question. In what ratio should a variety of rice costing 6 per kg mixed with another variety of rice costing 8.75 per kg to obtain a mixture of 7.5 kg? This question is similar to the second or third which we have done earlier. So please इसको वैसा ही solve करो। 6 पर केजी का ये इमेज प्लीज थोड़ा मिस्टेक हो रही है, इमेज गलत है, सोल्यूशन यहाँ पे दिया है ये, दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस। सो इन वाट रेशियो शुड अ वेराइटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 6 पर केजी बी मिक्स्ड विद अनदर वेराइटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 8.75 केजी? अभी यहाँ पे तो दो लाइन में सोल्यूशन दे दिया है, ट्राई टू सॉल्व इन दिस मेथड। ये इमेज किसी और सोल्यूशन किसी और क्वेश्चन का है, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक बाय मी, आई विल बी रिजॉल्विंग इट अगेन। सो इसको एलिगेशन की तरह सॉल्व करो। 6 एक लेफ्ट जगह ऊपर कॉर्नर पे लिखो एंड 8.75 इधर राइट साइड में कॉर्नर पे लिखो, बीच में 7.5 लिखो और दोनों का डिफरेंस लेफ्ट और राइट में लिखो। दिस विल बी द रेशियो, जैसे कि यहाँ पे किया है ट्रेडिशनल मेथड। जैसे कि 6 इधर लेफ्ट में लिखा, 8.75 इधर लिखा, बीच में मैंने 7.5 लिख दिया, तो 8.75 माइनस 7.5 और इधर 7.5 माइनस 6 दोनों को डिवाइड किया, दिस इज द डिविजन साइन between and our answer will be 5.6। ये ट्रेडिशनल मेथड लाइनिंग में लिखा है लोग ने, अपने को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट ट्राई टू सॉल्व इन द क्रॉस मेथड, दिस इज द क्रॉस मेथड एलिगेशन मेथड। सो इसमें 6 इधर कॉर्नर पे लिखो, सपोज आई एम राइटिंग 6 ओवर हियर एंड 8.75 हियर, बीच में 7.50 लिखा और इधर क्रॉस डिफरेंस, you will get your answer। okay, so this were the basic questions। try to resolve these questions। अगर वापस solve करते हो तो this is an additional point, additional practice for you only, and I'll be sharing the test link on the WhatsApp group, and this lecture might be uploaded on the YouTube as well। So if you have any doubt regarding any question, so please use those video which are being uploaded on YouTube and repeat. And if you are finding that you should find an explanation of any of the 5 questions, so you can watch those video again and again। okay, so I think हाँ 8.75 है ना, मिस्टेक हो गया कुछ, चलेगा उसमें, ये दिस इज 8.75, 87.5 नहीं 8.75। okay, so I think we are done with our session, today's session। okay, so I think we are done। so this is the test session which we will be conducting every day. Once you are done with your lectures, I'll be conducting this test session after an hour or maybe 2 hours, and I'll be showing you 5 questions. You have to try those questions by your own. I'll be giving a sufficient time to you, and after that I'll be explaining those questions with the solution. The only thing behind this test session is you are being judged that are you able to understand the concept in the lectures or not। and अगर लेक्चर में concept समझा तो उसके बाद टेस्ट देने में और
कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और वो याद हो जाएगा. ओके, so I think we are done with our today's session. Thank you so much, guys. And okay, so I think we should end this session. Thank you so much.